gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Hopefully you all are doing well. I am your English teacher. Today is your English lecture. The day is Monday and the date is May 3rd, 2021. The previous month was the April. April has been finished and April was the 4th month of the year. Now the 5th month has been started and that is the 3rd May. Okay, you can count with me the names of the month. The month's name: January, February, March, April, May. So the 5th month has been started. So our previous lecture was the vowels. We have done the practice of the vowel letters. Now our next topic is 3-letter words, and today we will write down the 3-letter words in your in notebook, and then you have to understand that from letter E and I, how you can make and write the 3-letter word. So let's open your book, page number 14. Here is your book, page number 14, and as you know, you remember that in page number 13 we have done these 2 pages, and these were the vowels, and these are the 3-letter words and start from letter A. You can see that in these 4 words in the middle the same letter is the same, and that is letter A. It means that how you can make the word from 3 letters: 1, 2, 3. This word is contains from made from the 3 letters, and in सब में similar बात ये है कि इन सब में जो है mid में letter A आता है, and letter A is vowel. What comes after letter A, vowel A? The next vowel is E. So today we will start the writing of the 3-letter words with the letter E. You can see here that I have colored the E letter with the blue. You can see here, ताकि आपको इजीली समझ आए कि इन सब वर्ड में जो सिमिलर जो कॉमन चीज़ है वो एक है वॉवल ई. ठीक है, और इन 3 वर्ड से जो है हम जो है एक वर्ड बनाएंगे. इन 3 लेटर्स से एक वर्ड बनेगा, इसलिए इनको 3 लेटर्स कहा जाता है, 3-लेटर वर्ड कहा जाता है, क्योंकि ये लफ्ज़ जो है वो 3 हरूफ से 3 लेटर से मिलकर बना है. So those words which make from the 3 letters, these are called the 3-letter words. So let's start our writing. The first word is, first of all, write down the classwork, and after that you have to write down your date. And in English you can you easily know the method that how you will write down the date. The date method is, first of all, you will write down the month name, and that is May, May. Don't put any comma. Write down 3. After 3 you have to write down the comma and year 2021. Now come towards the one that हमारे पास जो पेज है वो है हमारे पास 14, और 14 पेज पे हमने जो है अपने okay, the first word is bed, B-E-D, bed. So the phonetical sound is B-B-E-D, bed. So write down, start letter B from skyline. With the skyline we have to start letter B, and with the root line E-A, start from the grass line, and D start from the skyline. B-E-D, bed. बेड किसे कहते हैं? जो आपका पलंग होता है जिस पे आप जो है आराम करते हैं, सोते हैं. ओके. The next word is red, R-R-A-D, red. R start from grass line, R-R-A-D, red. Red means लाल रंग. Now come towards the next word, that is set. Set, S. Start from grass line, E-A-T, T start from skyline. Set means बिठाना या बैठ जाना. ठीक है, किसी भी चीज़ का बैठ जाना.
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सूरज को देखा होगा कि सूरज जो है शाम के वक्त कहाँ पे चला जाता है। आपको पता है, सूरज जो है पीछे पहाड़ों के पीछे बैठ जाता है। ये मैंने सन बना लिया है। जब शाम होती है तो शाम को जो है सूरज पहाड़ों के पीछे जाकर बैठ जाता है, तो इसीलिए हम कहते हैं सन सेट। सन सेट यानी कि सूरज का ग़रूब हो जाना, सूरज का बैठ जाना पहाड़ों के पीछे। ओके, नेक्स्ट इज़ नेट। नेट किसे कहते हैं? जाल। कोई भी आपने जाली वाला कपड़ा देखा होगा जिसमें छोटी छोटी सुराखें होती हैं। आपने नेट के जो है पर्दे भी देखे होंगे कब घरों में जो विंडोज़ के साथ लटके हुए होते हैं। आपने नेट के कपड़े भी पहने हुए होंगे, नेट के दुपट्टे भी होते हैं, तो उसमें छोटी छोटी होल्स होती हैं, सुराखें होती हैं, उसको नेट कहा जाता है। ठीक है, अक्सर आपने जो है बैडमिंटन खेला होगा। सो बैडमिंटन की जो हमारे पास जो बैडमिंटन होता है टेनिस में, उसमें जिससे आप लोग खेलते हैं उसमें ऐसे नेट, ऐसे सुराखों वाली नेट बनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपके लिए यहाँ पर बैडमिंटन एक रफली सा बना लूँ, ये हमारे पास बैडमिंटन है जो आप खेलते हैं। ठीक है, ये शटल के साथ, ये इसकी शटल है। ठीक है, इस शटल के साथ जब आप खेलते हैं, आपने यहाँ पर देखा होगा कि एक छोटी सी यहाँ पर ऐसे जाली सी होती है, इसको जो है नेट कहा जाता है। ठीक है, सो हियर इज़ नेट। नेट NET, नेट। ये मेरे पास टी जो है थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है, यू कैन इरेज एंड यू कैन राइट इट अगेन। ओके, योर वर्क मस्ट बी नीट। NEANT, start from skyline. Net, jali. Now come towards your page number 15. Here again you will write down the practice of the 3-letter words, but here you will write the 3-letter words with vowel I. हमने 2 वॉवल के साथ कर लिया है, A और E के साथ हमने 3-letter words की प्रैक्टिस कर ली है। नाउ थर्ड वॉवल इज़ आई। सो हेयर आई कलर्ड द मिड लेटर दैट इज़ आई, ताकि आपको पता चले। ठीक है, इन सब में लेटर आई जो है वो सेम है, एंड दैट इज़ वॉवल आई। एंड 3-letter वर्ड, द फर्स्ट इज़ निप, NIE। आई की जो वो है साउंड है वो ई है, जैसे इग्लू होता है, IE। P निप, निप, NIP निप। निप मीन्स काटना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अक्सर जो है स्पैरोस, चिड़िया या परिंदों की आपने ऐसे चोंच देखी होगी ना। ठीक है, और उससे जो है वो चीज़ों को काटते हैं, कुतरते हैं, चीज़ों को छोटा छोटा पीसीज में करते हैं, उसको कहते हैं निप। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर फेस बना लूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने डकलिंग बना दी है ये। ठीक, ये इसकी जो चोंच सी है इसको कहते हैं निप। द नेक्स्ट वर्ड इज़ लिप। लिप मीन्स होंठ, LI। आपने जो इसको सही इरेज करना है, MP लिप। लिप मीन्स होंठ। एंड द नेक्स्ट इज़ किट। किट इज़ स्टार्ट फ्रॉम स्काईलाइन, KID। किट, किट का मतलब होता है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट इज़, ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की जानिब निकल गया है इसकी, ये आपने बिल्कुल इसको सही करना है, लाइन से बाहर जो ये ना जाए। नेक्स्ट इज़ बिन। बिन का मतलब होता है कोई भी डब्बा, BIN, बिन, BE
बिन। बिन कहते हैं डब्बे को, ठीक है, कोई भी डब्बा हो या कोई भी बॉक्स हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि जो हमारे पास डस्टबिन होता है, गंद का डब्बा, तो इसी तरह कोई भी बिन हो सकता है, ठीक है। तो आपने व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू राइट डाउन एंड यू हैव टू प्रैक्टिस द rest you have to practice the writing in these rest of the lines and complete these two pages, page number 14 and 15, and I hope कि आपको इसकी समझ आई होगी. Today we have done the 3-letter words with the vowel E and I, so do the practice and learn it clearly. So take care of yourself.